Okay, so in today's class, we'll be starting with a new topic, and that is number systems 2. Right? In number systems 2, what we are going to study is finding out units place, finding out last two places, finding out reminders. So basically, this is a topic where we are expected to find reminders. Now, this has been an important topic if you leave last 2 or 3 years of CAT. Before that, there was a significant, weightage given to number systems. But last couple of years, if you look, the weightage given to CAT number systems in these examinations have slightly decreased. But then you never know what will happen in the next CAT. So we got to prepare with the same zeal as we were preparing it earlier. Now, to start with, this chapter, the first thing we need to know is finding out units place of a number with a given power. For example, I have a number like 2378492 whole की power 47832 for example, right? Now I am interested to find out what is the units place of this number. So basically, this is a very large number, which means it needs to be multiplied many times, and it needs to be multiplied these many times. Now, which is, once again, it is highly impossible for us to solve some questions like this now. But one thing, for example, if you take slightly smaller example, let's say 233 ki power 442, let's say. Now, what we are saying is 233 will be multiplied 42 times, right? And what we are interested is in finding out units place. Now, if you are interested in finding out units place, do we need to multiply 233 42 times, or this question can be simplified and reduce something? It can be reduced. Why? Because what do you mean by 233 into 42, which means 233 multiplied by 233. You'll get some answer. Let's say we try to figure it out. 3 3s are 9, 9, 18. You'll take a kata here. 9, 9, 6. है ना? फिर काटा 6, 6, 4, and then you add, you get this 9. Now this 9 was obtained from where? This 9 was obtained by multiplying these two places. That's all. So and the result of every other place was this cross. What does it imply? It implies that no matter how large the number is, if you simply take the units place of the number and you keep on multiplying those numbers of time, it will give you the answer for this complete value. Am I making sense to you guys? Now, if I have to find out last two places of the same thing, मतलब मुझे last two चाहिए, यानी कि 233 into 233 का last two digits. अब ये जो last two places अब किस पे डिपेंडेंट है? ये इस 9 पे डिपेंडेंट है. ये 9 कैसे आया था? ये 9 आया था इसके मल्टीप्लीकेशन से. ये समझ में आ रहा है? ये जो ग्रीन वाला 9 है वो इनके मल्टीप्लीकेशन से आया. ये 3 3 सॉरी इसके नहीं आएगा, माय मिस्टेक, दूसरे वाले से आया था. पहला वाला जो 9 है जो रेड कलर में दिख रहा है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 9. दूसरा वाला जो 9 है, ये वाला 9, वो इसका मल्टीप्लीकेशन है. समझ में आ रहा है? 9, तो ये 9 आ गया. फिर नीचे हमने काटा मारा, ये वाला 9 कहां से आया? ये वाला 9 है इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना? समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब हम उसके बाद नीचे करेंगे तो काटा आ जाएगा. अगर मैं इसको ऐड करता हूं लास्ट टू प्लेस, तो 9 और 9 18, कैरी 1 चला जाएगा. इसका मतलब लास्ट टू डिजिट किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ इस 3, इस 3, इस 3 और इस 3 पे. समझ में आ रहा है? इट इज नॉट डिपेंडेंट. अगर मेरा नंबर इसके आगे ये भी होता तो भी मेरा जो लास्ट टू डिजिट है वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट होता, लास्ट टू डिजिट्स पे. समझ में आ रहा है? पूरे नंबर का कोई लेना देना नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर हमें इसका यूनिट्स प्लेस निकालना है तो इसको भूल जाओ, सिर्फ इसका यूनिट्स प्लेस निकाल देंगे तो भी काम चल जाएगा. इस बात का ये मतलब है. और अगर मैं बोलूं कि इसका लास्ट टू डिजिट निकालना है तो हम इसको भूल जाएं, इसका सिर्फ लास्ट टू डिजिट निकाल दें 92 का, तो पूरे वाले वैल्यू का आंसर आ जाएगा. ये समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस इज इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट वी हैव सीन. अभी हमने फिजिकली मल्टीप्लाई करके देखा कि अगर हमें यूनिट्स प्लेस चाहिए तो सिर्फ जितना बड़ा भी नंबर है यूनिट्स प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम चल जाएगा. और अगर हमें लास्ट टू डिजिट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लास्ट टू डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो काम चल जाएगा. यहां तक बात समझ में आती है एकदम ना?
In this case, my question was, 2, 3, 7, 8, 4, 9, 2 whole की power 4, 7, 8, 3, 2, 2. And I'm asking you to find out units place. So firstly, we have reduced this question from this large value to a question where we say we need to find out answer of 2 की power 4, 7, 8, 3, 2, 2. हमें ये solve करना है ultimately now. Even this is not easy, obviously, because you multiply 2 into 2 into 2 so many times, which is a very, very lengthy process. So how do you really go about solving this question, right? So there are certain things that we need to understand before we really approach this kind of questions. And that is to understand pattern or the cyclicity of the numbers. So when I say pattern or the cyclicity of the number, what do I mean by this? Now, for example, let us just try to understand what is 2 की power 1, 2 square, 4, 2 cube, 8, 2 की power 4, 16. I'm only interested in units place, so I will write 6. So let's say 2 की power 5 is 32. So I will only write 2. 2 की power 6 is 64. I'll write 2 की power 7 is 128. I write 8. 2 की power 8 is 256. I write 6. 2 की power 9 is, and 2 की power 10 is 1024. So 4. Now, if you keep on doing this, what do we see? We see 2486. Now, if you see carefully, you see 2486. After 6, it repeats 2486, 2486, 2486. समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 की पावर 4 के बाद जो नंबर है वो रिपीट होता जाएगा. समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 4 के बाद कितना भी नंबर हो वो रिपीट होगा. In another words, I've been saying 2 की power 4 is 6. Then I'm saying 2 की power 8 is 6. 2 की power 12 I'm saying is 2 की power 16 would be basically 2 की power 4 into any number. The units place will be 6. So why I'm taking only 4? Because it is repeating after fourth power. It is repeating after fourth power. Therefore, I say the cyclicity of 2 is 4. What do I say? Cyclicity of 2 is 4. That means after fourth power, the units place will remain same. So 2 की power 4, 2 की power 8, 2 की power 12, 2 की power 16, 2 की power 4 into 278. इसका आंसर क्या होगा? 6. समझ में आ रहा है? 2 की पावर 400, 1400 कुछ भी हो, 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी पावर क्या होगी? यूनिट्स प्लेस क्या आएगा? 6. ये समझ में आना चाहिए. तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 6. आई एम सॉरी 4. साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4 एंड द आंसर विल बी 6, which you can always find out by taking 2 की पावर 4. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें सबको समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द साइक्लिसिटी ऑफ 3. 3 की पावर 1 3. 3 square is 9. 3 cube is 27. 3 की पावर 4 is 81. 3 की पावर 5 is 243. तो 81 का हम 1 लेंगे. 3 की पावर 6. अब याद जरूरत नहीं, इंटू 3 तो करना है भाई. 3 की पावर 5 3 है. 3 की पावर 5 अगर 3 है तो इंटू 3 इधर करेंगे तो इंटू 3 यहां भी करना पड़ेगा. तो 3 की पावर 6 की वैल्यू क्या बन गई? 9. 3 की पावर 7. अगर 3 की पावर 6 की वैल्यू 9 है तो 3 की पावर 7 यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 करो. समझ में आ रहा है? 3 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 1. 3 की पावर 9 कितना होगा? कुछ समझ में आ रहा है इसमें? क्या समझ में आ रहा है? यानी कि 3 की साइक्लिसिटी क्या है? 4. यानी फोर्थ पावर के बाद उसका लेकिन आंसर क्या आता है? 1, बिकॉज 3 की पावर 4 इज 81. समझ में आ रहा है? तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है? 4. तो इसकी भी साइक्लिसिटी थी 4. इसकी भी साइक्लिसिटी थी 4. अच्छा, अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 की पावर 1 कितना होता है? 5. 5 स्क्वायर कितना होता है? 25. 5 क्यूब कितना होता है? 125. 5 की पावर 4 कितना होता है? 625. 5 की पावर 5 कितना होगा? जो भी होगा आंसर क्या आएगा? 5. इसका क्या मतलब है? इसकी साइक्लिसिटी 1 है. इसका मतलब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले 8 3 7 8 5 की पावर 4 7 8 2 1. इसका आंसर क्या होगा?
क्योंकि 5 की कुछ भी पावर रेस करोगे तो आंसर तो 5 ही आना है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है, तो ये तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये तो हमें पता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। ठीक, उसके बाद 6 की पावर 1 क्या होता है? 6 स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 क्यूब क्या होता है? 216। 6 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 6। 6 की पावर 5 क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? इसकी साइक्लिसिटी 1 है, यानी 6 की पावर 8347। इसका आंसर क्या होगा? 6। कुछ करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 6 की साइक्लिसिटी 1 हो गई। अब हम देखते हैं 7 की साइक्लिसिटी। 7 की पावर 1 7। 7 स्क्वायर 49। 7 क्यूब, हाँ 343। 243 3 आएगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि साथ साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 7 9 जा 63, 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 1। 7 की पावर 5 7। 7 की पावर 6 9। 7 की पावर 4 सॉरी 7 3। 7 की पावर 8 1। कहां पे रिपीट हो रहा है? 7931 7931 7931। साइक्लिसिटी क्या है इसकी? 4। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो इसकी साइक्लिसिटी 4, यानी 7 की पावर 4 करेंगे तो उसके बाद जो यूनिट्स प्लेस है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और इसकी पावर 4 का मतलब है आंसर 1 आएगा। ये हम फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए सारी कहानी है हमारी। 8 को देखेंगे, 8 की पावर 1। 8 स्क्वायर इज 64। क्या बनेगा? 32। 512। 8 की पावर 4 16। 8 की पावर 5 8 6 48। 8 की पावर 6 4। 8 की पावर 7 2। 8 की पावर 8 8 की पावर 9 है 8। क्या नजर आ रहा है? इसका क्या मतलब है? 8426 8426 8426। What does it mean? It means the cyclicity of 8 is 4. The cyclicity of 8 is 4. Now let us look at the cyclicity of, अच्छा यहाँ पे हमने 4 छोड़ दिया ना एक बार, अच्छा गिनती में 4 रह गया अपना। 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 9 की पावर 1 कितना होगा? 9। 9 स्क्वायर कितना होगा? 81। 1। 9 क्यूब कितना होगा? तो 9 बनेगा। 9 की पावर 4 कितना होगा? 1। 9 की पावर 5 कितना होगा? इसका क्या मतलब है? इसकी साइक्लिसिटी, इसका मतलब अगर 9 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर 9 आएगा, और 9 की पावर इवन नंबर है तो आंसर 1 आएगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। हमने 4 मिस कर दिया, हम 4 और देख लेते हैं। 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 क्यूब कितना होता है? 4। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 6। व्हाट डू यू सी? द साइक्लिसिटी इज 2। इसका मतलब है अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर 4 आएगा, और इवन नंबर है तो आंसर 2 आएगा। यानी यहाँ पे मेरी साइक्लिसिटी इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। अब हमने कुछ छोड़ा, 1 छोड़ दिया। मान लेते हैं 1 की पावर 1 होता तो क्या होता? 1। 1 स्क्वायर होता तो क्या होता? 1 क्यूब होता तो क्या होता? इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1। अब यही डिजिट अगर हम पढ़ाई करेंगे, यूनिट्स प्लेस निकालना है, तो इन 9 डिजिट्स के अलावा तो कुछ आएगा नहीं। हो सकता है 0 आ जाए आखिरी में। 0 की पावर 1 कितना होता है? 0। 0 स्क्वायर कितना होगा? 0। 0 क्यूब कितना होगा? 0। इसका मतलब उसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1। मतलब 0 है तो जैसे साइक्लिसिटी, या तो साइक्लिसिटी मेरी 1 है, और या तो साइक्लिसिटी 2 है, और या तो साइक्लिसिटी 4 है। अगर किसी की साइक्लिसिटी 2 है तो 4 पे तो आएगा ही आएगी। जो कोई नंबर हर 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली 4 के बाद तो रिपीट होगा ही होगा। और जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी भी 4 तो है ही है। तो हम एक बात को मान सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसका यूनिट्स प्लेस जो भी कोई भी डिजिट हो, उसकी साइक्लिसिटी 4 पे तो पक्का ही मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कुछ चीजें बेसिक्स हैं तो याद रहे। 0 की साइक्लिसिटी पता ही है क्या है? 1 की साइक्लिसिटी 1। 5 की साइक्लिसिटी 1, और 6 की साइक्लिसिटी 1। यानी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, यूनिट्स प्लेस में या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, आंसर हमें ऐसे ही पता रट्टा, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, 4 की और 9 की साइक्लिसिटी क्या है?
2, यानी मान लो मैंने कहा 8374 होल की पावर 8956, इसका आंसर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, यूनिट्स प्लेस में 4 है। मान लो 3784 4 होएगा सर। होल की पावर 4321 मान लेते हैं, इसकी यूनिट्स प्लेस क्या बनेगा? इसका यूनिट्स प्लेस क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 6 4 क्यूब कितना होता है? 4 4 की होएगा। पावर 1 4, 4 स्क्वायर 6, 4 क्यूब 4, 4 की पावर 4। इसका क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑड पावर होगी तो 4 आएगा, इवन पावर आ गई 6 होगा। क्या इतना क्या दिमाग लगा रहे हो तुम? ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ये तो पता होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, जो नहीं होता है वो ऑड होता है। यानी 0 2 4 6 8 एंड हो रहा है तो वो इवन है, नहीं तो ऑड। तो इट्स एन ऑड नंबर। तो 4 की पावर ऑड नंबर, यूनिट्स प्लेस क्या आएगा? इसका आंसर 4। क्वेश्चन खत्म। अब मान लेते हैं यही होता 3784 की पावर 47484, फिर इसका आंसर क्या आता? 6, क्योंकि 6 पावर इवन है, इसमें क्या दिमाग लगाना है? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मान लेते हैं नंबर होता 34786, 6 नहीं 9 की पावर 4321, इसका आंसर क्या आता? 9। यहाँ 2 होता है, इसका आंसर क्या आता? 1। पावर ऑड है तो आंसर 9 आएगा, पावर इवन है तो आंसर। अब ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस सोच लो भाई, मान लो भूल गए तो मान लो 4 का स्क्वायर करके देख लो, 6 आ रहा है, 4 की पावर, या 1 करके देख लो 4 आ रहा है, तो ये पता लग जाएगा भाई 1 है यानी ऑड है तो 4 आएगा, और 4 स्क्वायर इवन है तो 6 आएगा। काम खत्म। सारी समस्या कहाँ आ रही है हमें? 2 3 7 और 8 क्यों आ रही है? क्योंकि इनका पैटर्न 4 का है। तो अब हम इसको कैसे समझें और इसका हिसाब किताब क्या लगाएं? ये तो याद रहेगा। अगर ये भूल भी गए तो जो मैं अभी आपको मेथड बताऊंगा वो जनरल मेथड है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्यों है अभी समझते हैं। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, 2 की पावर, हमने ये लिखा था ना 478322, तो 2 की पावर 478322, ठीक। अब चूंकि मुझे पता है 2 की पावर 4 इंटू समथिंग करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो मैं इस सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड करूंगा, तो आई कैन राइट दिस 2 की पावर 4 इंटू 1, ठीक है, ये भी 1 आएगा, 3 बचेगा 36, 4 9 जा 36, 2 कैरी 23, 4 5 जा 20, 30, 4 8 जा 32, 0, ये बनेगा इंटू 2 की पावर 2, ऐसा लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 478322 को 4 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 4 1 जा 4, 7 को तारा, 4 1 जा 4, 3, 4 9 जा 36, 2, 3, 4 5 जा 23, ऊपर से तारा 2, 4 8 जा 32, ऊपर से तारा 2, नहीं जाने की 0, रिमाइंडर बच गया। कर सकते हैं ऐसा। इसका मतलब है बेसिकली 478322 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 119580 प्लस 2। समझ में आता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे ये भी पता होगा a की पावर m प्लस n कैन बी रिटन एज a की पावर m इंटू a की पावर n, या फिर ऐसा दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे +2 है तो इसको मैं इंटू 2 की पावर 2 कर दूं, +2 को। समझ में आ रहा है? तो अब इसका आंसर तो हमें पता ही है। इसका आंसर क्या है? सॉल्व करने की जरूरत है? यही तो सीखा इतनी देर में कि साइक्लिसिटी 4 इंटू समथिंग 6 आई, तो इसका आंसर 6 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? 4 6 4 जा 20, यूनिट प्लेस क्या बनेगी? इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ पहले। सर ये मेथड है। हाँ बोलो। सर चाहे रिमाइंडर लेके वो ही देख लेंगे दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी कर रहे हैं उसी को, वही बता रहा हूँ मैं। अब चूंकि हमेशा 6 आएगा, यूनिट्स प्लेस या तो यहाँ पे 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा या 4, और तो कुछ बन नहीं सकता। तो 1 बनेगा तो 6 इंटू 2 12 यानी 2, 4 बनेगा 6 इंटू 4 यानी 4, 3 बनेगा 6 इंटू 8 यानी 8।
इसका मतलब 6 का कोई रिलेवेंस नहीं बैठ रहा है इसमें, सिर्फ यूनिट्स प्लेस रिमाइंडर की पावर आएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि 2 की पावर 4 7 8 3 2 2 करना है, इसका यूनिट्स प्लेस चाहिए। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूंगा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो क्या मैं पूरा नंबर डिवाइड करूं? आखिरी के लास्ट दो। 2 डिजिट डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 7 8 3 0 0 प्लस 22, इसको डिवाइड करना है 4 से। क्योंकि पहला वाला पोर्शन हमेशा डिविजिबल है 4 से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ यहीं से आएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे कितना भी बड़ा नंबर हो और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तो कोई जरूरी नहीं है पूरा नंबर मैं 4 से डिवाइड करूं। ऑल आई हैव टू डू इज टेक लास्ट 2 डिजिट्स एंड डिवाइड बाय 4, काम चल जाएगा मेरा। तो अब इसका मतलब है मेरे पास लास्ट 2 यानी 22 को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो जो मेरा आंसर होगा वो ये होगा, जो रिमाइंडर है ना, तो 2 की पावर 2 4, जो कि हमने 4 निकाला है। क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना, शॉर्टकट में आखिरी 2 डिजिट पकड़ना है। शॉर्टकट क्या है? पावर की आखिरी 2 डिजिट पकड़नी है और उसको किससे डिवाइड करना है? 4। अब 4 से क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है। बस ये सारी जो पूरा मैंने आपको बना के दिखाया चार्ट इसलिए समझाया है कि मैं अगर शुरू में बोलता भी 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना, आप पूछते क्यों, वो जो क्यों है उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी नंबर हो वो 4 के बाद तो रिपीट होगा ही होगा, तो अपने 4 स्टैंडर्ड पकड़ लिया, अभी 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर भी क्या पूरे नंबर का नहीं, तो हम लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिमाइंडर आएगा यूनिट्स प्लेस की पावर वो कर दोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आंसर आपको निकाल के दे देगा। 3 7 8 4 8 की पावर 5 6 7 8 1, क्या आंसर होगा इसका? 81 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 8 की पावर 1। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे 14 ये होता, अब क्या करते? 14 को 1 से डिवाइड करते, रिमाइंडर क्या आता 4 2, तो आंसर क्या होता 4 आएगा। रिमाइंडर इसको डिवाइड करते अपन 4 से, तो रिमाइंडर क्या बचता 2, तो हमें करना पड़ता 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो आंसर क्या आता 4। समझ में आ रहा है? बस सारे डिजिट्स के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ 1 है तो क्या ये सब मेहनत करोगे? आपको पता है आंसर। अगर यहाँ 6 है तो क्या मेहनत करोगे? पहले से पता है। अगर यहाँ 5 है तो क्या मेहनत करोगे? नहीं। अगर यहाँ 0 है तो क्या मेहनत करोगे? नहीं। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ 4 है तो मेहनत करोगे? शर्म कर, क्यों करेगा? इवन दिख रहा है 4 की पावर इन, क्वेश्चन खत्म है, क्यों तेरे को क्यों डिवाइड करना है? ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। 9 होगा तो भी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑड इवन तो बहुत ही आसान है ना, वो तो देख, तो ये भी आसान ही है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही आसान है कि भाई देखना है ऑड है इवन है और आंसर हमें पता है, तो क्यों कर रहे हैं हम? 4 9 की कोई चक्कर नहीं है, यानी ज्यादा ज्यादा अगर आखिरी में 2 3 7 8 आता है तो ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। सो दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट यूनिट्स प्लेस ऑफ एनी नंबर। ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे से पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? 3 4 7 8 की पावर 7 की पावर 4 3 2 2। When this number is divided by 10, what is the remainder? When this number is divided by 10, what is the remainder? Now, why this is an indirect question? Because if you take this question, 3 4 7, let us say 5 divided by 10, what is the remainder? 0.5। अरे पिटाई खाओगे तुम सब। 5 0.5 तो डेसिमल कन्वर्जन है, रिमाइंडर क्या है उत्तरे की? 3 4 7 5 है भाई। 10 3 जा 30, 4 उतारोगे 7, 10 4 जा 40 75, 10 7 जा 70, क्या है रिमाइंडर 5। इसका क्या मतलब है? कोई नहीं, एक और ले लेते हैं। 3 4 1, इसको डिवाइड बाय रिमाइंडर क्या आएगा 1 1 7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका 7 रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो डिवाइड बाय 10 का क्या मतलब होता है?
जो लास्ट डिजिट होती है वही रिमाइंडर होएगा, यही तो ये समझा रहा हूं मैं। ये बात समझ में? अब अगर मैंने कहा इस नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जो आखिरी में आएगा वही रिमाइंडर होगा। 9 आखिरी, आएगा। आखिरी का मतलब यूनिट प्लेस निकालना है, और यूनिट प्लेस निकालने का लास्ट शॉर्टकट आपको डिजिट पता है। इसको निकालनी किससे है। डिवाइड करोगे? 4 से। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो क्या आएगा आंसर? 7 की पावर 2, तो ये बनेगा 49 9। तो बेसिकली यही आएगा, मतलब यही आंसर है 9। तो डिवीजन बाय 10 इज सेम एज सेइंग फाइंड आउट यूनिट्स प्लेस। डिवाइड बाय 10, कोई भी नंबर को आपने बोला 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर क्या है? यूनिट्स प्लेस है। समझ गए? कुछ नया नहीं पूछ रहा है वो, यूनिट्स प्लेस पूछ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है आपको यूनिट्स प्लेस निकालना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो पूछ ही रहा है। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से चलो मैं लगे हाथों, मान लो इसको 100 से डिवाइड किया और मैंने कहा रिमाइंडर क्या है? 75। 75। इसमें करा, इसमें रिमाइंडर क्या है? 52. So basically division by 100 implies finding out last 2 digits. समझ में आ रहा है? रिमाइंडर मीन्स लास्ट 2 digits. ठीक है? ओके। Now if you know divisibility by 10 and 100, we can find out reminders of its factors from here itself. मतलब 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2, 5 एंड 10 तो है ही, और 1 तो है। 1 और 10 का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, 1 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने वाला यूनिट्स प्लेस ही निकालना है। लेकिन अगर हमें, अगर यही क्वेश्चन दिया होता 3 4 7 8 7 की पावर 4 3 2 2 डिवाइडेड बाय 5, of course there are many methods, but in this case I am just trying to tell you, अगर 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? 9। 7 का स्क्वायर, रिमाइंडर क्या आ रहा था? 9। 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 9 आ रहा है। तो 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको निकाल लो, उसके बाद फिर से इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो इसका आंसर 4 होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 10 से डिवाइड करने का हमें पता चल गया क्या रिमाइंडर आता है। तो अगर 10 के फैक्टर्स का कोई क्वेश्चन आ जाए, 10 के फैक्टर्स, 10 के फैक्टर्स यानी यहाँ पे एडिशनल 2 और 5 और उससे डिवाइड करके हमें रिमाइंडर निकालना है, तो आप 10 से डिवाइड करके पहले रिमाइंडर निकाल लो, उसके बाद या तो 2 से पूछेगा या 5 से पूछेगा, जो उसका रिमाइंडर है उसके बाद उस फैक्टर से डिवाइड कर दो, उसका रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब यहाँ 10 से डिवाइड करने पे आएगा रिमाइंडर 9, लेकिन हमें किससे डिवाइड करना था? 5 से। तो अपन 9 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 4 आंसर। अगर ये क्वेश्चन होता कि इस नंबर को अपन ने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बताओ, तो अपन क्या करते? 10 से डिवाइड करने पे तो आया 9, तो इसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 1। काम खत्म। ये मतलब है। ठीक है। और अगर शुरू में ही 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मान लो 3 आ जाता, मान लेते हैं 10 से डिवाइड का रिमाइंडर, तो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव। समझ में आ रहा है? मैंने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, तो 5 से डिवाइड करूंगा 3 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही रहेगा। लेकिन 2 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। आ रही बात समझ में? ये पक्का ना? ये गांठ मान लो, ये कहीं मिलेगा नहीं, मतलब अपने में तो मिलेगा भी नहीं और कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये प्रीवियस ईयर का कुछ कॉन्सेप्ट वहां से उठाया हुआ है कैट का। एनीवे, सो दैट्स हाउ यू understand the utility of units place and reminders. Now before we come down to finding out reminders and then we'll move to last 2 digits, I need to explain to you what is a reminder. हालांकि मैंने HCF LCM में समझाया था रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर क्या होता है? जो that extra value which is preventing the number from becoming completely divisible. Okay, now let me ask you this question. If I have a number like 14 and I divide by 10, what is the remainder? Okay, so let's say I have a number like अच्छा मैं 10 देख लिया ना, तो मैं इसलिए लग रहा है
इसलिए गड़बड़ कर रहे हो, मुझे यहाँ करने दो। मान लेते हैं उल्टा कर देता हूँ मैं, मान लो 10/6 कर लेता हूँ। Okay, so let's say I give you, 10 की पावर 6 divided by 6 into 10 की पावर 5. What is the remainder? How is that? सेम आएगा सर, सेम ही आएगा। सेम आएगा मतलब 2 आएगा, मतलब ये इसको काट दोगे, ऊपर 10 बचेगा, फिर इसको काट दोगे 5 बचेगा, इसको काट दोगे 3 बचेगा, तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सब गलत है। वो इसलिए गलत है, इसमें तो चलो पकड़ में आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये वाला ना बड़ा सारा दिखाता हूँ। मान लो एग्जाम ही क्वेश्चन करना है, मान लो हम कर लेते हैं, मान लेते हैं 20 into 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 into 10 की पावर 6। इसका मान लो रिमाइंडर चाहिए अपने को, तो कैसे करोगे? पहला सबसे पहले तो यही करेंगे, फिर 2 10 जा, 2 3 जा, रिमाइंडर आएगा 1, जो कि पहला ऑप्शन होगा, जो कि गलत होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ, अब ये गलत क्यों होगा ये समझने की बात है। पहले यही समझते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। अगर हमने 10 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, दिस इज नॉट सेम एज 5 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। पहली बात तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर आएगा 4। तो ये आंसर है, ना कि 2 आंसर है। तो हम इसका मतलब हम कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, पहले तो तुमने इसलिए सही बोला था क्योंकि यूनिट्स प्लेस था ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पैटर्न समझाया था, 10 से डिवाइड किया था। हाँ, तो इस केस में भी यही हो रहा है, हमें चाहिए 20 into 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 into 10 की पावर 6, यही चाहिए। अब टेक्निकली 1 आंसर पता है कब आया? जब हमने ये काटा और इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था? 2। ऊपर और नीचे 2 काटा था ना तब, तो इसका मतलब हमने टोटल कैंसिलेशन किया 2 into 10 की पावर 6, ये कैंसिलेशन किया था ऊपर और नीचे। तो आपको क्या करना है, कैंसिल कर लो, क्योंकि इसको हम डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे एग्जाम में, तो पहले कैंसिल करके रिमाइंडर निकाल लो। तो रिमाइंडर आ गया 1, जो कैंसिल किया था उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा। जैसे यहां हमने कैंसिल किया था 10/6, बेसिकली इसको हमने क्या किया था, 2 into 5 अपॉन 2 into 3, राइट। हमने कैंसिल किया था, वो 5 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 निकाला था। तो 2 जब रिमाइंडर आया वो कब आया? जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से कैंसिल किया था। तो आंसर लिखने से पहले उसको वापस मल्टीप्लाई बैक करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये तरीका है इसको करने का। जो कॉमन फैक्टर जब भी हम कैंसिल करते हैं उसको बाद में आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ये रिमाइंडर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मतलब 20, हाँ, तो सबसे पहले देखो आपने कैंसिल, एक तो ये 10 की पावर 6 किया है, और आपने 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, आपने ये यही कैंसिल किया है ना। अब आपके पास बच गया 70 डिवाइडेड बाई 2, वो एनीवे डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0, और बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा। 2 से क्या, हाँ 3 हो जाएगा, चलो 70/3। तो 70/3 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 69, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 तो इसका आया, हमने क्या कैंसिल किया था, इंटू 2 into 10 की पावर 6 कैंसिल किया था, तो ये रिमाइंडर है मेरा।
ठीक है, तो जब भी हम रिमाइंडर निकालेंगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वही ध्यान रखना है। अगर हमने उसको सॉल्व करने के चक्कर में मतलब सिंप्लीफाई किया और फिर रिमाइंडर निकाला, वो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अदरवाइज बहुत बड़ा होगा। तो फिर हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, जो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन किया था उसको वापस रिमाइंडर में रिवर्स में जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिमाइंडर की। दूसरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिमाइंडर की, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1203 इंटू 1205, दिस नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अब मेरे पास 1203 गुना में 1205 गुना में 1207 है, उसको 12 से डिवाइड करना है मुझे। now problem is it is not easy to multiply this obviously and then divide by 12. So what I am saying is कि when you multiply a number and then divide to get a remainder, it makes sense that you first find out the reminders and then multiply the reminders, you will still get the answer. That means मैं इसको पहले 12 से डिवाइड करता हूं, किसको, इसको, इसका रिमाइंडर आएगा 3, फिर मैं करता हूं इसको 12 से डिवाइड, इसका रिमाइंडर आएगा 5, और फिर मैं करता हूं इसको 12 से डिवाइड, इसका रिमाइंडर आएगा 7। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आ गए, मेरे रिमाइंडर आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। 5 3 15, अब पूरा मैं कैलकुलेशन नहीं करनी, 15 इंटू 7 भी नहीं करना चाहता मैं। 5 3 15, 15 बटे 12 3, 7 3 21, 21 बटे 12 -3 + 9, ये रिमाइंडर आएगा। अभी मैं समझ रहा था तुम अभी पूछने वाले हो -3 क्यों बोला मैंने, है? इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 9। अब आप, मैं जो समझा रहा हूं वो ये कि रेदर देन मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग एंड गेटिंग अ रिमाइंडर, it you will also get the reminder by individually dividing the number, getting the reminders and then ultimately multiplying the reminders. समझ में आ रहा है, ऊपर जा रहा है? तो अब मान लो मैंने क्या किया, इसके बाद भी मैंने क्या किया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, कितना बनेगा 15, 15 को 12 से डिवाइड करूंगा, कितना बनेगा 3, 3 इंटू 7 बटे 12। अब इसको काटना पीटना मत, काटोगे पीटोगे तो बाद में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में तो 7 21, 21 बाय 12 रिमाइंडर इज 9। तो अगर आप इसको करोगे तो भी आंसर आपका 9 आएगा। ठीक है, मैंने ये कहा, मैं और भी तुमसे ज्यादा भी आलसी था, मैंने 3 निकाल दिया, 7 रिमाइंडर, 7 के 21 को 12 से माइनस करना पड़ेगा, तो जोर आ रहा था, तो मैंने कहा ये तो -5 हो ही जाएगा, 7 फालतू यानी 5 की कमी, 5 3 15, 15 को -15 को डिवाइड करोगे तो -3 आएगा भाई, -15 डिवाइडेड बाय 12 इज -3, -3 का मतलब +9। अभी -3 क्या होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया होगा ये आपको। हाँ, तो फिर वापस समझा देता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। 21 को 12 से डिवाइड करो तो 12 एकम 12, 9 बचा, यानी 21 में 9 फालतू है, या तो ये भी कह सकते थे 3 की कमी है, इसी को तो नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। इसको भी यहां भी कर सकता था मैं, 7 फालतू है यानी 5 की कमी है, तो 5 3 15, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे -5 की कमी, तो कितना बन जाएगा, -15 रिमाइंडर आएगा। लेकिन 15 कभी भी मतलब मैग्नीट्यूड बड़ा नहीं हो सकता डिवाइजर से, तो इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -3। किसी नंबर को 12 से डिवाइड किया, 3 की कमी है, कितना फालतू है 9, उसको जोड़ के देख लो, जो गैप है वो पता लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का। क्यों ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वी वांट टू ऑलवेज मेक श्योर दैट द मैग्नीट्यूड इज स्मॉल, ताकि कैलकुलेशन आसान होती रहे। अगर नेगेटिव रिमाइंडर हम कई बार यूज कर लेते हैं ताकि जो बड़ी कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाए, इसलिए हम यूज करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का। फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अगर यही वाला जो क्वेश्चन ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, मान लो एडिशन में हो जाता 1203 प्लस 1205 प्लस 1207 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या कर सकते थे, क्या जोड़ते ना, इंडिपेंडेंटली निकाल देते। इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है। टेक्निकली मैं तो आलसी हूं, तो -5 कर देता मैं इसको,
7 फालतू यानी 12 की कमी। अब इन तीनों रिमाइंडर को जोड़ दो तो आंसर कितना आ गया? 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं तो हम कर भी सकते हैं 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 12, यही सॉल्व करना है। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 डिवाइडेड बाय 12 3। इसका मतलब है रेदर देन फर्स्ट एडिंग and then dividing, you can first divide and then add the reminders. The only thing is reminder should be always less than the divisor. यानी उनको सम करने के बाद भी अगर उसकी वैल्यू डिवाइजर से बड़ी आ गई तो उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता? ये भी क्वेश्चन बन सकता था। अगर यहाँ माइनस होता क्वेश्चन में तो हमारा रिमाइंडर में भी माइनस आ जाता। तो 5 और 3 8, 8 - 7 का मतलब है -1 आ गया रिमाइंडर। इसका क्या मतलब है? +11। तो यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन of numbers and then dividing by a certain number and getting a reminder is same as first independently getting the reminders of those individual components and then adding them, subtracting them or multiplying them. Them means the reminders. And if you see the value, product or sum or difference of reminders value is more than the divisor, you further divide that number till you keep on dividing the number till you get reminder which is smaller than the divisor. क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइड करने वाले से छोटा ही होना चाहिए, तभी उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो बड़ा आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझ में आने चाहिए रिमाइंडर्स के, और ये यूज होते हैं। एक बड़ा नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए और आपसे बोले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, नहीं होएगा। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो फटाफट रिमाइंडर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आती है सभी को? Now for finding out reminders of number when it is being divided by some number, there is no single method कि भाई इससे तो हो ही जाएगा। Different types of questions, we need to understand that there are different methods, right? Of course, one method is what you call as pattern method, that is always can be done, but it is always a very lengthy process, but that is also a method. So there are different methods which are provided in our books that we need to study to find out reminders. So one of those methods is the pattern method that we call. For example, we are having one of these questions, 3 की power 43 divided by 4, for example. So this is the question. Let us say we have 3 की power 43 whole divided by 4, and we are searching for the remainder, right? Now, once again, I mean, we cannot really do 3 into 3 into 3 and then multiply, divide by 4. So that's not possible. So what do? We figure out a pattern method. तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं आपको? पैटर्न मेथड। तो ये पैटर्न मेथड क्या है? मान लो मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 3। 3 को 4 से करोगे 3। अगर मैं 3 स्क्वायर को करूंगा, इसका मतलब है 3 स्क्वायर का मतलब इधर भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? तो 9 हो जाएगा। 9 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 1। रिमाइंडर आएगा 1। अच्छा, फिर मैं 3 क्यूब ले लेता हूं। इधर 3 करूंगा तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेदर देन मैं आई ट्राइंग कि 27 डिवाइडेड बाय 4, यहां पे 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 डिवाइड बाय 4 वापिस 3 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 4 बाय 9, 4, यहां 3, यहां 3, 9 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 1। व्हाट डू यू सी? अ पैटर्न ऑफ पावर ऑफ 2, यानी कि 3 की पावर 2 का 4 करूंगा तो भी 1 आएगा। 3 इंटू 2 की पावर 2 करूंगा डिवाइड बाय 4 तो भी 1 आएगा। 3 की पावर 2 इंटू 3 करूंगा तो भी, यानी 2 के मल्टीपल पे आ रहा है ना। इसका मतलब है 3 की पावर 2 इंटू कुछ भी कर दो, मेरा रिमाइंडर डिवाइड बाय 4 1 आएगा। ठीक, तो मैं इसको कहां तक लेके जा सकता हूं? 3 की पावर 2, हमें पता है इस पे पैटर्न मिल रहा है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा 21 और वापस मेरे पास 3 बचेगा और मुझे इसको डिवाइड करना है 4 से। अब रेदर देन अभी मैंने सिखाया था कि इसका अलग से रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इसका अलग से रिमाइंडर निकाल लेते हैं और इसका अलग से रिमाइंडर निकाल लेते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी हम यहां से क्या समझ पा रहे हैं? 3 की पावर 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इस रेड वाले का रिमाइंडर कितना आ रहा है? हमेशा 1। तो दिस रिमाइंडर इज ऑलवेज 1 और ये बनेगा इंटू 3 बाय 4।
सो 1 into 3 is 3, 3 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरा 3। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न मेथड होता है। हम कोई एक और देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं हमारे पास 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 9 है, मान लेते हैं 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 9 है। वंस अगेन विल पैटर्न मेथड, 2 की पावर में डिवाइड बाय 9 क्या बनेगा 2, 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 9 क्या बनेगा 4, 2 क्यूब डिवाइड बाय 9 क्या बनेगा 8, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 9 कितना बनेगा 16, 16 डिवाइड बाय 2 -1 -2 -1 into 2 -2 7 आएगा ना, 2 की पावर 4 16, 16 by 9 is 7, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 तो ये बनेगा 2 14 9 5 5 आएगा, 32 डिवाइड बाय 9। फिर मैं करूंगा 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 10 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आता है ना मजे आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद चांसेस रिपीट होना शुरू हो जाता है। 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 4। देखो तो क्या हो रहा है 2 4 7, यानी 2 की पावर 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 1 आएगा, 2 की पावर 12 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 1 आएगा, 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर 1 आएगा। यानी 2 की पावर 6 इंटू कुछ भी करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब मुझे इसको किस फॉर्म में लाना है 6 के फॉर्म में, है ना। तो 2 की पावर 99 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 इंटू 6 1 जा 6 39 बचेगा, और 6 6 जा 36 3 रिमाइंडर बचेगा, तो यानी 2 क्यूब। ये समझ में आ रहा है, डिवाइड करके फिजिकली डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 16 6 जा 99 96 प्लस 3 99। अब इसको मुझे डिवाइड बाय 9 करना है। अब मुझे पता है कि अगर इसको डिवाइड करूं इसका रिमाइंडर इंटू इसका रिमाइंडर, आंसर आना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर मेरा कितना बन रहा है 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9 8 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, दैट इज माय आंसर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन रहा है पैटर्न मेथड। आ रही बात समझ में? नो प्रॉब्लम्स। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि उसको हमें 1 पावर 1 पावर 2 पावर 3, अब वो पैटर्न कहाँ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन मिलेगा जरूर, ये गारंटी है। अब 5 के बाद मिल जाए, 10 के बाद मिल जाए, 15 के बाद मिल जाए, वो हमारी किस्मत पे है कि हम कैसे उसको अप्रोच करते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज मेथड्स दैट वी से पैटर्न मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिमाइंडर। तो हमें कहाँ तक का पैटर्न बनाना है, जहां जिसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो रहा है, ये हमारा पैटर्न मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने स्कूल में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, उसके ऊपर बेस्ड है। ये रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या था? Of course, I personally don't like it very much in terms of finding out reminder this method, but it is given to us, so we have to really understand what it is saying and how do we really handle these kinds of questions. But कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रिमाइंडर निकालने का जी यही मेथड यूज करना है। हर बच्चा आपको अपना अपना मेथड यूज करता है, लेकिन हाँ आई कैन टेल यू कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोशिश करना ये वाला मेथड लगाएं ताकि क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाए। दैट इज व्हाट कैन बी हैंडल्ड। So what is a reminder theorem? Before understanding anything, let me explain what is a reminder theorem. Let us say there is a function f of x. Function बोलते ही तो टेंशन हो जाती है, but still, you know, let us say we are having x square minus 5x plus 6, and let us say it is divided by x minus 2 3 तो आ ही जाएगा, x minus 4 कर लेते हैं, and I am asking you what is the remainder. Now, what is the way of dividing this number? ये तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो हमारा जो तरीका था, अगर हम आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो तो इसको ऐसे करते थे x minus 4। अब यहाँ पे एक ऐसा चीज लिखना है सच दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ 2 होता, मान लो यहाँ 2 होता, तो यहाँ क्या लिखते अपन 2x, लेकिन चूंकि यहाँ 2 नहीं है और x है तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन x। x into x is x square,
अगला स्टेप होता था ये वाली जो वैल्यू है -4 इसी से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा। अगला स्टेप होता था इसको माइनस करना, तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये कट जाएगा तो मेरा आएगा -x, ऊपर से उतारेंगे हम +6। ठीक, उसके बाद वापस इसको सेम करने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूं, -1, सो x इंटू -1 इज -x, -4 इंटू -1 इज +4। उसके बाद वापस माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 2। -2 क्यों होगा, 2 आएगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना हो गया 2। ये बात समझ में आती है। ये तरीका होता था मैनुअल तरीका जिससे हम रिमाइंडर निकालते थे। अब जो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसको हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग f ऑफ a। व्हाट डज इट मीन, मान लेते हैं f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास x² माइनस 5x प्लस 6 है। व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ 2, what is f of -3, what is f of donkey, what is monkey, मतलब जो भी यहां पे डालेंगे वो x में रिप्लेस हो जाएगा, यही मतलब है। तो अगर a है तो इसका क्या मतलब है, a² माइनस 5a प्लस, यही मतलब होगा। अब यहाँ पे f ऑफ a किसको बोल रहा है, जैसे ये अगर ऊपर वाली चीज, अगर ये ऊपर वाली चीज मेरी f ऑफ x है तो जो नीचे वाली चीज है वो x माइनस a है, तो ये मेरी x माइनस a है। अगर येलो वाला f ऑफ x है तो x माइनस a क्या है, x माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 4। इसके हिसाब से जो x तो x हो गया, माइनस माइनस से मैच कर गया, तो a की वैल्यू क्या बनी 4। तो रिमाइंडर अगर मुझे निकालना है तो क्या बनेगा f ऑफ 4, किसमें f ऑफ x में, जो कि सिर्फ ऊपर वाला है। तो ये करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, यही करना पड़ेगा। 16 माइनस 20 प्लस 6, 22 माइनस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, जो कि मेरा रिमाइंडर है 2, ये मतलब है। ठीक है, अगर रिमाइंडर ना बचे तो x माइनस 4 फैक्टर हो जाता है इसका, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कुछ नया नहीं है भाई, वो फैक्ट अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम इसको फैक्टर थ्योरम, तो ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 10वीं क्लास में आता था ऐसा लिखा हुआ कि इफ देयर इज अ फंक्शन f ऑफ x and when divided by x minus a, if f of a is 0, if f of a is 0, that means x minus a is a factor of f of x। यानी अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका मतलब x माइनस 4 फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो चूंकि ये डिवाइड नहीं कर रही है तो ये फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब x माइनस 4 इसको डिवाइड कर देता तो इसका मतलब वो फैक्टर हो जाता। समझ में आ रहा है, नहीं मान लो यहाँ पे अपने x प्लस 4 होता, ठीक है, x² मान लेते हैं माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ठीक है, हमें लेकिन फॉर्मेट चाहिए x माइनस a की, हमें फॉर्मेट चाहिए, और ये माइनस फॉर्मूला का है, इसका मतलब है मुझे ये करना पड़ेगा x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -4, तो ये x माइनस a, तो अब a की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो -4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब रिमाइंडर निकालना है f ऑफ a की वैल्यू -4 यानी f ऑफ -4, तो मेरा बनेगा -4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू -4 प्लस 6, तो 16 प्लस 20 प्लस 6, आंसर बन जाता 42, ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम इसको डिवाइड करके भी चेक करके देखोगे तो रिमाइंडर 42 आपको मिलेगा। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद रिमाइंडर एज नाउ, बट दिस इज अ थ्योरम, दिस इज वी आर ट्राइंग टू यूज दिस थ्योरम टू गेट अ आंसर। बट द थ्योरम इज, कोई फंक्शन है, अगर हम उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम उसको f ऑफ a क्या मतलब होता है, x माइनस की फॉर्मेट में जो भी होता है उसको x ऑफ a बोलते हैं। वो फिर अलग तरीका होगा उसको हैंडल करने का। नॉर्मली अगर डिनोमिनेटर में मान लेते हैं 2x प्लस 1 होता,
मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 एंड यू आर आस्किंग द रिमाइंडर. सो बेसिकली x माइनस a को a कैसे आता है, एक्चुअली ऐसे आता है. x माइनस a को एक्चुअली जीरो पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू a हो जाती है. अगर x प्लस a होता तो जीरो पुट करते तो x की वैल्यू माइनस a होता. जैसे अपना x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 था, इक्वल टू जीरो पुट किया तो मैंने कहा माइनस 4 लेना पड़ेगा. और अगर x माइनस 4 था तो मैंने कहा इसको 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 4 को हम जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा. वैसे इसको हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस हाफ. तो अगर मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा f ऑफ माइनस हाफ, मतलब माइनस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू माइनस हाफ प्लस 6, ये रिमाइंडर बनेगा इसका. अगर नीचे क्वाड्रेटिक होएगी तो जो रिमाइंडर होगा वो ax प्लस बी की फॉर्मेट में बनेगा, प्लस बी. क्यों, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज 1 डिग्री लेस देन द डिवाइजर. तो वी डोंट नो कि कांस्टेंट आएगा या लीनियर फंक्शन आएगा. वैसे ही अगर न्यूमरेटर क्यूबिक होता, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बाइक्वाड्रेटिक होता और डिनोमिनेटर क्यूबिक होता, तो जो रिमाइंडर बचता वो क्वाड्रेटिक बच सकता था. तो मुझे रिमाइंडर एज्यूम करना पड़ता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर और आइट्रेशन कर करके a b c की वैल्यू ढूंढनी पड़ती ताकि मैं रिमाइंडर निकाल सकूं, which certainly gets a complex question. ये फिलहाल मैं आपको, चूंकि मैं क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं. ये अभी हम नंबर सिस्टम में है, नंबर सिस्टम में इसको यूज करके उसने कुछ रिमाइंडर निकाला है. तो चूंकि मेरे को वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आपको देनी है कि इसने कैसे किया, इसलिए समझा रहा हूँ फिलहाल. हाँ, जो तुम पूछ रहे हो वो करवाऊंगा क्वाड्रेटिक में, चिंता ना करो. जो तुम पूछ रहे हो उसको हम क्वाड्रेटिक में कर लेंगे, क्योंकि वहां है, मिलेगा. क्वाड्रेटिक या बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक यानी 4th डिग्री इक्वेशन, 5th डिग्री इक्वेशन, उसको कैसे हैंडल करना है जब उसको सीखेंगे तब सीखेंगे. अभी हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसको, इसका रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे यूज करें. ठीक है. ओके. अब जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 9, यही था ना. रिमाइंडर अपन ने क्या निकाला था इसका, 8. ये पैटर्न मेथड से 8 निकाला था. अब हम इसी चीज को रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, सेम क्वेश्चन को. अब मुझे इसमें दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग ये लगाना है न्यूमरेटर को, इसको मुझे समहाउ f ऑफ x बनाना है और इसको मुझे समहाउ x माइनस a बनाना है. यानी दोनों में x x चाहिए, भाई फंक्शन के लिए तो x बनाना पड़ेगा. तो x किसको माने, ये चैलेंज है. x किसको माने, ये चैलेंज है. तो हमें 9 और 2 में आपस में कोई रिश्तेदारी निकालनी पड़ेगी. 9 और 2 में क्या रिश्तेदारी हो सकती है, 9 और 2 में प्लस माइनस क्या, 11. फिर 11 को कहाँ सेटिंग करेंगे, 7 का कुछ जुगाड़ नहीं बैठेगा. मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर मैंने 2 क्यूब को x बना दिया तो मैं 9 को x प्लस 1 लिख सकता हूं, जो कि मेरे काम का बन जाएगा. और ऊपर वाली वैल्यू को भी, मतलब 2 की पावर 99 को भी मैं 2 क्यूब 33 बना सकता हूं. समझ में आ रहा है. अब अगर मैं 2 क्यूब को x मान लूं तो 2 की पावर 99 का मतलब हो जाएगा x की पावर 33. तो बेसिकली मुझे चाहिए 2 की पावर 99 डिवाइड बाय 9. तो मैं इसको मानता हूं x की पावर 33 और इसको मानता हूं x प्लस 1. अब ये वाला मेरा है फंक्शन f ऑफ x और ये मेरा है x माइनस a. इस केस में a की क्या वैल्यू हो जाएगी, -1. तो अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो f ऑफ -1 होना चाहिए रिमाइंडर. इसका मतलब है f ऑफ x की वैल्यू है x की पावर 33, तो f ऑफ -1 की वैल्यू होगी -1 की पावर 33, जिसकी वैल्यू क्या है, -1. यानी रिमाइंडर कितना आना चाहिए मेरा, -1. बट जब हम एक्चुअली डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता. अब किसी नंबर को आपने 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +8. ऐड करने से आ जाएगा. तो यही आंसर है, ऊपर देखो.
मैंने यही कहा था कि मैं इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे +1 -1 के अलावा कुछ लिखना पड़ गया ना तो जोर आ जाएगा ना। ये तो खैर सोचा जाएगा, इसमें तो ज्यादा नहीं है। लेकिन मान लो एक और क्वेश्चन है, 2 की पावर 201/5। अब वंस अगेन यहाँ पे तो बन रही है बात, क्योंकि आपको पता है 2 और 5 में रिलेशनशिप अभी अभी किया है, तो दिमाग चल जाएगा। क्या चलेगा, क्या करोगे? क्या करें यहाँ पे? 2 और 5 में क्या रिश्तेदारी है? 5 कैन बी टेकन एज 2 स्क्वायर + 1। तो इसका मतलब है अगर मैं 2 स्क्वायर को x मान लूं तो 5 की वैल्यू x + 1 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर तो मेरा बनेगा x + 1। न्यूमरेटर में 2 की पावर 201 है और हमें चाहिए 2 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 100 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब 2 स्क्वायर को हमने क्या माना हुआ है? x। तो ये मेरा बन जाएगा 2x की पावर 100। तो मेरा न्यूमरेटर बन गया 2x की पावर 100। तो ये वाला मेरा बन गया f(x) और ये वाला बन गया x - a की वैल्यू क्या बनी? a की वैल्यू -1। तो रिमाइंडर निकलेगा f(-1) यानी 2 इंटू -1 की पावर 100। इसका आंसर आएगा 2। ये मेरा आंसर है। चाहो तो अब इसको चेक करना है तो पैटर्न मेथड से करके देख लो। मान लें यहाँ 2 आता तो रिमाइंडर बनता है 2 इंटू 2 की पावर 100। फिर क्या कर लेता, खत्म है, मामला ही खत्म हो गया। जिसको सिंपल कर रहे थे वो वही। और 3 आ जाता, मान लो कुछ और होता तो 3 की पावर 100 थोड़ा ना सॉल्व होएगा, कौन सॉल्व करेगा बैठ के। और 1 होता, 1 की पावर 10,000 भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, 1 आना है। -1 होता तो भी क्या होगा, प्लस माइनस का ही चक्कर है। रिमाइंडर तो अपने को पता है भाई, माइनस में आ गया तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, इतना ही तो तंग पाना है। लेकिन कुछ और आ गया तो उसकी पावर कौन सॉल्व करेगा, वो फिर दोबारा पूरा कहानी दोबारा करनी पड़ जाएगी, फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए +-1 आते तो ठीक है, उसके अलावा पंगा। इसलिए वी कैन, I mean, I personally don't use this many times. Possibly students also must not be using. नॉर पैटर्न मेथड। पैटर्न मेथड तब है जब फंस जाता है ना, कुछ नहीं निकलता, तो भाई तसल्ली से बैठ के मैं देखता हूँ कहाँ मिलेगा। एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने लाया, पता नहीं कहाँ से लाया, 22 के बाद मिला। मैं कहा भाई साहब क्यों बर्बाद कर रहे हो समय, पता नहीं कहीं से कुछ मिल गया होगा उसको, नेट नोट पे कहता सर करो। मैं कहा यार छोड़ ना, कहता नहीं सर करो। मैं कहा अच्छा भाई दे, कुछ नहीं लग रहा। वो 22 पता नहीं क्या आया था, 22 के बाद पैटर्न पकड़ में आया। फिर वो 22 पैटर्न मिलने के बाद तो खैर कोई क्वेश्चन में बचता नहीं है, लेकिन वो पैटर्न कौन पकड़ेगा? 22 एग्जाम में थोड़ा ना आप कर सकते हो, 3 4 5 आ जाए, इससे ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद छोड़ने वाला बात है, या फिर कुछ और मेथड लगाओ। ऑफ कोर्स जो हम पढ़ेंगे अभी और भी मेथड्स पढ़ेंगे, बट दैट इज द सजेशन। तो इसको ना नेट के चक्करों में मत पढ़ना। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वाले, और तुम फालतू में पजल हो जाओगे। निकलेगा जरूर, चाहिए भाई। तुम कहो कि आज तो मेरे को नींद नहीं आएगी इसको निकाले बिना, तो पैटर्न मेथड लगा लेना, 2-4 घंटे में कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा वो। कोई गलती नहीं हो सकती है उसमें। नहीं नहीं, मैं आजकल की मतलब ऐसे फीलिंग की बात कर रहा हूँ भाई, 2-4 दिनों में मन कर रहा हो कि भाई थोड़ा और करके देखा जाए और कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो एक तो हमारा ये बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट से मैं पहले आपको कुछ और कराता हूं। मैं कराता हूं आपको फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ये काफी बच्चे यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम तब इस्तेमाल होता है जब किसी प्राइम नंबर से आपको डिवाइजर मिले। प्राइम नंबर से आपको डिवाइजर मिले तो ये क्या बोलता है, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम बोलता है a की पावर p-1 is divisible by p if p is a prime number. p is a prime number and importantly a and p are co-prime. ये भी इंपॉर्टेंट है। को-प्राइम का मतलब है दोनों में कोई कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है, मतलब मान लेते हैं नीचे अपना प्राइम नंबर है 13
ऊपर कोई भी नंबर ले लो, एक ही जगह कोई भी नंबर ले लो, लेकिन वो 13 नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं तो को प्राइम नहीं बचेगा। 26 नहीं ले सकते, 52 नहीं ले सकते, 169 नहीं ले सकते। उसके अलावा तुम्हारी जो श्रद्धा है वो ले लो। मान ले तुमने 54 ले लिया, ठीक है। इसकी पावर 12 यानी इससे एक कम, ठीक है। अगर -1 कर दिया तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अगर 54 की पावर 12 होता बटे 13 होता, इसका क्या रिमाइंडर आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? क्यों है? 8? क्यों 12? 1 आएगा उसमें क्या? देखो हमें पता है -1 करके रिमाइंडर 0 है, तो मैं -1 + 1 कर दूं। अब इसको करूंगा 54 की पावर 12 -1 डिवाइडेड बाय 13, और इसको करूंगा +1 डिवाइड बाय 13। दोनों अभी अभी बताया था ना, सम करके रिमाइंडर निकालना है या अलग अलग रिमाइंडर निकाल के बाद में रिमाइंडर जोड़ दें, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि ये फॉर्मेट्स-लिटिल थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका रिमाइंडर क्या बनेगा? 0, और इसका रिमाइंडर क्या बनेगा? 1। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ओवरऑल रिमाइंडर क्या बनेगा? 1। तो करने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, नीचे प्राइम और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मतलब जो भी प्राइम है वो प्राइम का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और जो पावर है वो इससे एक कम होनी चाहिए। पावर वो उससे एक कम होनी चाहिए। -1 करोगे तो रिमाइंडर 0, अगर -1 नहीं है तो सीधा या तो याद कर लो या +1 रिमाइंडर है। हाँ मतलब ये तो एग्जाम्पल ही है ना भाई, ये थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्राइम नंबर 7 उठा ले, 71 उठा ले, 11 उठा ले, कुछ भी उठा, 37 उठा ले, कुछ भी उठा लेगा तो आंसर इसका बना है। दिस इज व्हाट इज नोन एज फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। नाउ एग्जांपल हमारी किताब में एक जो क्वेश्चन है वो है 5 की पावर 119 डिवाइडेड बाय 57 या 58, क्या है 59। हाउ डू यू हैंडल दिस क्वेश्चन? अब मान लो इसका रिमाइंडर निकाल, ऑब्वियसली 5 की पावर 119 को हम 59 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कुछ और मेथड लगेगा नहीं, पैटर्न फूटन नहीं लगा सकते। हाँ पैटर्न कभी भी लगा सकते हो, बट प्रॉब्लम ये 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 59 5 आएगा, 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 59 25 आएगा, 5 क्यूब डिवाइड बाय 59, फिर 125 में से इसको माइनस करोगे 118, 18 7 आएगा रिमाइंडर, फिर उसकी पावर 4 करोगे 625। ऐसा पैटर्न बनाना पड़ेगा, आंसर मिलेगा विदाउट डाउट, बट देन that is always a very very lengthy method, the last resort. How do we approach this question? कैसे करें? क्या पंगा क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर हम इसको लिटिल है 2 into 59 plus 1 2 into 58 2 into 58 तो 116 आएगा। करना क्या भी, हम अगर ऊपर क्या होता तो मजे आ जाते, 58 होते तो मजे आ जाते, यही बात है। तो उसको ले आते हैं, मजे लेने तो उसको करना पड़ेगा, तो क्या लाना है हमें? 58 लाना है। हमें क्या चाहिए? 58। तो हम ये कर सकते हैं जो वो करने की कोशिश कर रही है दिमाग में, 58 से डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं तो कितना बनेगा? 116, बचेगा क्या? 3। इसका मतलब है बेसिकली आई कैन राइट 5 की पावर 2 into 58 plus 3 लिख सकता हूं। ऐसा ही मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 58 चाहिए। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 58 मजे चाहिए 58। तो अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, 5 क्यूब इंटू 5 की पावर 2 की पावर 58 कर दूं, चलेगा? दिस डिवाइडेड बाय 59। अब ये वाली जो फॉर्मेट है वो कुछ कुछ फीलिंग आ रही है फॉर्मेट्स वाली। अब चूंकि 5 और 59 में को प्राइम नहीं है, तो 5 की पावर और 59 में भी कभी भी को प्राइम नहीं आएगा। तो हम इसको कर सकते हैं, इसको 125, इसको बाहर रहने देते हैं, इसको 25 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 58 डिवाइड बाय 50 यही बनेगा। या तो डायरेक्ट याद है 1, वरना यहां -1 करो और ठीक, इसलिए 125 बाहर निकाला, ध्यान रखना। +1 -1 करोगे तो इस सिस्टम में कर रहे हो, ना कि यहां पे -1 +1 करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हमें पता है 125 इंटू इसका रिमाइंडर क्या है?
इसका वाला रिमाइंडर क्या है 0 और इसका रिमाइंडर है 1, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा 0, ओवरऑल रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। लेकिन 1 तो इसका अंदर वाले का अभी भी 125 बचा हुआ है, समझ में आ रहा है। रिमाइंडर हैज टू बी लेस देन 59, तो बनेगा 125 बाय 59, तो इसमें से 59 का मल्टीपल माइनस करोगे कितना बचेगा 118, 9 दूनी 18 ना, 118, तो 118 तो कितना बच गया 2 और 5 7, यानी इसका रिमाइंडर बनेगा 7, तो दिस इज द आंसर। फर्मैट्स लिटिल थ्योरम समझ में आ रहा है। तो हमें क्या कोशिश क्या करनी है उसको, है नहीं नाम भूल जाओ, कोई चक्कर नहीं है भाई, ये पता होना चाहिए नीचे प्राइम है ऊपर एक कम है, बस आंसर आना चाहिए, कोई कोई चक्कर नहीं है। फॉर्मेट फॉर्मेट क्या है, मरमुरा गया कब का, क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो बचा ही नहीं हुआ अब। हाँ हो रही है, बट ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये सब मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं है, कोई हो रही है हो रही है हो रही है, मतलब आई विल सेंड इट। हाँ वो भी मैं कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट मत करना इसको, तो सारी बातें सबको पता लग जाएंगी, पढ़ाई की लग जाए तो ठीक है, बाकी सारे कोई फॉर्मेट का फिर फैन हुआ तो भैया केस वेस कर देगा, बोलेगा क्या ही चक्कर है तुम्हारा है हाँ फेमस तो यार होगा ही, वो तो हमें नहीं, हम अनफेमस है, हमें थोड़ा ना पता है कौन है, मैथ्स के वर्ल्ड में तो बहुत बड़ा आदमी होगा ठीक है। तो फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम इसकी बहुत यूटिलिटी है, काफी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे वो इससे होंगे, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम प्राइम नंबर जब फंसता है डिनोमिनेटर में तो हम फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम से करते हैं। ठीक है, क्लियर है फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम सभी को। ये और कर लो चलो, 26 की पावर 57 होल डिवाइडेड बाय 29। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें मुझे लगा आप ही करोगे क्या, ऐसा क्या, ऊपर क्या चाहिए अपने को, मजे आने के लिए क्या चाहिए 28, वेरी गुड, लगाओ 28 का जुगाड़। 28 into 2 plus 1. हाँ ठीक है, आगे करो। सर 26 आएगा। बिल्कुल ठीक। Say 26.
Okay, so we are looking to have 28. तो 57 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 2 जा 56, रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 26 की पावर 2 इंटू 28 प्लस 1 लिख सकते हैं। 57 को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस 1 है तो हम 26 इंटू 26 की पावर 2 इंटू 28 लिख सकते हैं। ऑफकोर्स ये समझाने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा 26 इंटू 26 का स्क्वायर होल की पावर 28। दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 29। तो हम इसको 26 यहाँ पे है, तो ये बनेगा 26 का स्क्वायर, जो भी है उसका कोई लेना देना नहीं है, ए है, ये पूरा पूरा ए है, इसकी पावर 28 विच इज p माइनस 1। यहाँ -1 कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 29। हमें पता है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 0। क्यों? फर्मैट्स लिटिल थ्योरम से, है ना। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना बचेगा? 26 इंटू 1/29। तो 26 इंटू 1 इज 26। तो when 26 is divided by 29, remainder is 26 only. So that is my answer. That is how you handle this question. ठीक है, बन रही है बात फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। इसके बाद आता है विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम, विल्सन कौन था? वैसे तो कोई ना कोई मैथमेटिशियन ही होगा, बट तुमने कभी सुना है विल्सन? दूसरा विल्सन, कास्ट अवे मूवी देखी है? कास्ट अवे देखना, बढ़िया मूवी है। ठीक है, ऑल ऑफ यू वॉच दिस मूवी कास्ट अवे। ओके, सो वहां पे तुम्हें विल्सन मिलेगा। वैसे तो उस मूवी में है, एक विल्सन बनाता है वो किसी को, वो आपने देखनी है, अच्छी मूवी है। सो इन दिस विल्सन्स थ्योरम कहाँ लगता है? जहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन होता है। फैक्टोरियल फंक्शन समझते हो? मान लो मैंने कहा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको हम फैक्टोरियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, ये जो फैक्टोरियल फंक्शन क्या बोलता है? फैक्टोरियल फंक्शन बोलता है, मतलब विल्सन्स थ्योरम बोलता है कि अगर हमारे पास p-1 फैक्टोरियल प्लस 1, उसको डिवाइड बाय p करेंगे, मतलब p-1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p वेयर p इज अ प्राइम नंबर। मतलब मान लेते हैं p 13 है, तो ऊपर मुझे क्या चाहिए? 12 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल होता तो 13 से 13 कट जाता, रिमाइंडर 0 आता, तो एक फैक्टोरियल कम। इसमें कह रहे हैं अगर एक जोड़ दोगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा 13 से। इट इज वैलिड फॉर ऑल प्राइम नंबर्स। तो मान लेते हैं मेरे पास 23 है, तो अगर मेरा ऊपर 22 फैक्टोरियल है, 22 फैक्टोरियल 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19, इसको 22 फैक्टोरियल, अगर अपन इसमें 1 जोड़ दें तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ये मेरा बोलता है विल्सन्स थ्योरम। समझ में आ रही बात? अब मान लेते हैं +1 ना होता, मान लो मैंने कहा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13, तो रिमाइंडर क्या आता है? तेरह से डिवाइड करके रिमाइंडर 22 तो बच नहीं सकता ना बेटा। और क्या कुछ अलग नजर आ रहा है? -1 का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? 12 सर। यस एब्सोल्युटली। अगर ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल, क्योंकि +1 चाहिए लिखा और -1 चाहिए, डिवाइडेड बाय 13। हमें पता है ये जो वाला पोर्शन है, येलो वाला पोर्शन, इसका रिमाइंडर क्या है? 0। इसका रिमाइंडर 0 है, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? -1। यानी किसी नंबर को हमने 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -1 आया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? 12। समझ में आ रहा है? जनरली क्या होता है कि p-1 फैक्टोरियल when divided by p will always give you a reminder of p-1 बेसिकली। ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक एडवांस्ड वर्जन समझ लो, ये भी है। ठीक है भाई, एक तो यही हो गया, इसका रिमाइंडर क्या है? 0। समझ में आ रहा है? इसका रिमाइंडर क्या है? 0, फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। और अगर नहीं है तो इसका रिमाइंडर क्या बनेगा मेरा? p-1। एक और
क्वेश्चन बन सकता है इसमें, अगर मैं बोलूं 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13, इसका क्या रिमाइंडर होगा? दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, आई मीन दिस इज है क्यों? इसको करने के लिए पिछला क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13, इसका रिमाइंडर कितना है? 12 है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल बाय 13, इसका रिमाइंडर भी 12 ही है। क्यों? क्योंकि इसी को मैंने ऐसा लिखा है। सेम चीज लिख दी सर आपने। सेम चीज लिखी है तो 13 लिखना है नीचे। हाँ, नीचे 13 लिखनी है। ठीक है, अब ऐसा समझो कि जो मैंने पहले आपको सिखाया था कि मैं अगर इन दोनों के अलग अलग रिमाइंडर मल्टीप्लाई करूं तो भी ओरिजिनल आंसर ही आना चाहिए। इसका रिमाइंडर मान लेते हैं, मैंने कहा R1 मान लेते हैं, और इसका रिमाइंडर मेरा क्या है? 12 ही है। 12/13 12 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इनका जो प्रोडक्ट है 12 इंटू R1, जो रिमाइंडर है वही रिमाइंडर 12 ही होना चाहिए। तो R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, यानी रिमाइंडर इसका 1 आएगा। देखो, मैंने कहा कि 11 फैक्टोरियल का रिमाइंडर चाहिए। मैंने कहा 11 फैक्टोरियल बाय 13। अब हमारे पास कोई मेथड नहीं है पर से, ठीक है? तो लेकिन हमें ये पता है कि 12 फैक्टोरियल का 13 है। वो कैसे पता है? वो फॉर्मेट लिटिल से पता है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि हमें ये पता है 12 फैक्टोरियल बटे 13, इसका रिमाइंडर कंफर्म्ड है 12। चूंकि मुझे 11 फैक्टोरियल का चाहिए तो मैं 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 फैक्टोरियल बाय 13 लिखता हूं और मैं कहता हूं इसका रिमाइंडर 12 है। नो, और हमें इस बात का भी पता है किसी नंबर का प्रोडक्ट करके डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आना चाहिए अगर इंडिपेंडेंटली डिवाइड करके दोनों रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट, जो अभी हमने बहुत सारा किया था, मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल लो या रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं ये मान लेता हूं कि दो चीजों का रिमाइंडर अलग अलग निकालता हूं। तो मैं एक रिमाइंडर इसका निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है इसका रिमाइंडर, मैंने इसको क्या बोला? R1, ठीक है? और दूसरा रिमाइंडर मैंने निकाला इसका रिमाइंडर R2 भी बोल सकता हूं, लेकिन हमें पता है कि 12 डिवाइडेड बाय 13 का रिमाइंडर कितना आएगा? 12, तो इसका रिमाइंडर आएगा 12। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हो रहा है तो जो फाइनल रिमाइंडर आना चाहिए वो 12 इंटू R1 आना चाहिए। अगर 12 इंटू R1 की वैल्यू 13 से बड़ी होती तो मुझे 13 से डिवाइड करना पड़ता। अगर 12 R1 की वैल्यू 13 से बड़ी होती तो मुझे डिवाइड करना पड़ता। लेकिन जब मैं 12 R1 की वैल्यू देखता हूं यहां पे तो उसका आंसर भी 12 ही नजर आ रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब R1 की वैल्यू 1 हो, और तो हो नहीं सकता। 12 इंटू R1 की वैल्यू 12 आए, ये तभी हो सकता है जब R1 की वैल्यू 1। बट व्हाट इज R1? R1 is the remainder when 11 factorial was divided by 13, and that is what is required. So generally p minus 2 factorial divided by p का हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये भी रिजल्ट है एक तरह से। पता नहीं, जो अभी करते हैं कोशिश। ठीक है, यूं तो बड़ा पंगा ही हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। अब मान लो ये कह रहा है सर 10 फैक्टोरियल बाय, आगे नहीं करूंगा लेकिन, ठीक है। अब हमें पता है कि 11 फैक्टोरियल बटे 13 का रिमाइंडर 1 है। इसका मतलब है हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 का रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो अगर मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है तो मैं इसका रिमाइंडर मान लेता हूं R1, और इसका रिमाइंडर मुझे पता है 11, यानी 11 R1 को जब मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 11 R1 की वैल्यू 13K+1 की फॉर्मेट में होगा।
अच्छा चलो 11R1 डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ 11R1 डिवाइडेड बाय 13, कुछ तो आएगा, आने दो, कुछ तो आएगा। नीचे क्या बचेगा? 1 बचना चाहिए, यही बात है। तो इसका मतलब है 11R1 इज इक्वल टू 13K प्लस 1। ठीक है, और R1 की जो वैल्यू है ऑब्वियसली 13 से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर है। अब जुगाड़ बिठाओ, 1 डालते हैं, 1 तो होएगा नहीं, 2 डालते हैं, यानी R1 सॉल्व करना है अपने को। R1 इज इक्वल टू 30। अब बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का ये प्रोग्राम है जो मैं अभी तुम्हें करवा रहा हूं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बुक नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 स्पेशल इक्वेशंस ऐसे सॉल्व करते हैं, वो चैप्टर है पूरा का पूरा। बट फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूँ कि अपने को R1 चाहिए ट्रायल एंड एरर से। तो मैं इसको करता हूँ 13K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको 11K प्लस 2K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11 कर लेता हूँ। सो आई नो कि ये वाला तो डिवाइड हो ही जाएगा, यानी K प्लस 2K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11, ये बनना चाहिए मेरा R1। अब K की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो K की वैल्यू क्या होगी? 1 नहीं ले सकता, 3 बाई नहीं, 2 लूंगा 4 प्लस 1 5 बाई 11 नहीं होगा, 3 लूंगा 3 2 6 प्लस 1 नहीं होगा, 4 लूंगा 4 2 8 प्लस 1 नहीं होगा, 5 लूंगा तो हो जाएगा। तो 5 2 10 प्लस 1 11, यानी मैं K की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 5 ले सकता हूँ। तो R1 की वैल्यू बनेगी 5 प्लस 11 बाय 11, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। इसका मतलब है इसका रिमाइंडर होना चाहिए 6। अब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये हर क्वेश्चन के लिए अलग निकलेगा। ये आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 13 इज 6। Okay, so that's how you'll be able to solve. अब अगर यही ऑब्वियसली अगर ये 9 फैक्टोरियल होता तो हमें 10 फैक्टोरियल का रिजल्ट यूज करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो जितना नीचे जाता जाएगा वो सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा। P-1 प्लस 1 का पता ही है डायरेक्ट, P-1 का डायरेक्ट भी पता है, P-2 का भी पता है 1। उसके बाद जो है ना वो फिर ये आइट्रेशन करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लमेटिक है। बट क्वेश्चन आए हुए हैं P-2 तक कैट में। ठीक है, तो ये विल्सन्स थ्योरम की एप्लीकेशन है, रिमाइंडर निकालने का तरीका है। कहाँ, अभी तो 20 मिनट पड़े हैं अभी तो। चलो ठीक है, मैं आपको रिमाइंडर नहीं कराता, लेकिन एक ऐसे ही थ्योरम दे रखी है वो करवा देता हूं, जो ऐसे ही थ्योरम, इसका इससे कोई लेना देना नहीं रिमाइंडर से। उसको बोलते हैं, 12वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10वीं में भी पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैं बस वही सिखाऊंगा अभी। बड़ी मैं गंदी है आपको ये ये वाली नहीं जी। बता सकता हूँ बिना बाइनोमियल के कोफिशिएंट कैसे निकालना है, फिर तो मजा आएगा। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं पहले बाइनोमियल बताऊंगा तभी तो बताऊंगा, ये नहीं आता तो क्या करना है। चलो, बाइनोमियल क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने कहा a प्लस बी की पावर 0, इसका आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैंने कहा a प्लस बी की पावर 1, इसका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी। वेरी गुड। अगर मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैं करूंगा a प्लस बी का होल क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस एस। करते जाओ सर। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा? अब नहीं पता जी। बस हो गया। गड़बड़ है यहाँ पे। ओके सुनो सुनो, अब शांत। अब देखो क्या करना है अपने को। मान लेते हैं अपने को a प्लस बी की पावर 5 चाहिए, या कुछ भी 6 चाहिए, या n चाहिए मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर ले लो पहले, a की पावर 5 ले लो, b की पावर 0 लो, यानी ये मैक्सिमम है और ये कम है, इनका सम 5 होना चाहिए। चेक करने का तरीका है। अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको एक को कम करोगे तो ये एक बढ़ जाएगा, फिर इसको एक और कम करोगे ये एक और बढ़ जाएगा, इसको एक और कम करोगे तो ये और बढ़ जाएगा, इसको एक और कम करोगे तो ये एक और बढ़ जाएगा, इसको एक और कम करोगे तो ये एक और बढ़ जाएगा। यही बात है। अब जैसे अपन ने ये a क्यूब में किया था, ये तो फॉर्मूला में याद है, मान लो हम इसको इस मेथड से करें तो क्या बनेगा, a की पावर मैक्सिमम करोगे, b की पावर मिनिमम करोगे, फिर a को इसको एक कम करोगे, इसको एक बढ़ाओगे, फिर इसको एक और कम करोगे, इसको एक और बढ़ाओगे, इसको एक और कम करोगे, इसको एक और बढ़ाओगे। यही बात है। इसमें भी यही हुआ था, a की पावर मैक्सिमम थी, b की पावर 0 था, इसको एक कम किया, इसको एक बढ़ाया, इसको एक बढ़ाया, इसकी पावर 0 किया, यही किया। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो हम कुछ लिखते नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें एक्सपेंशन दे दिया जाए, मान लो 10 दे देते, तो आपको एक्सपेंशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की पावर 10, b की पावर 0, a की पावर 9, b की पावर 1, a की पावर 8, b की पावर, लिखते जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, कोफिशिएंट्स लिखने में। इसके पहले क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 1 है, यहाँ पे क्या था 1 3 3 1, ऐसे आया था, ऐसे आएगा। इसको कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, देखो 1 लिखो, इसको 2 टांग पे खड़ा कर दो, कर दिया, इन दोनों को जोड़ दो, कितना बनेगा 2, यहां बाहर 1 1 लिख दो, ठीक। फिर इनको जोड़ दो, क्या बनेगा 3, इसको जोड़ दो, क्या बनेगा 3, 1 1 लिख दो। फिर इनको जोड़ दो, क्या बनेगा 4, इनको जोड़ दो, क्या बनेगा 6, इनको जोड़ दो, क्या बनेगा 4, और उसके बाहर 1 1 लिख दो। फिर इनको जोड़ दो, क्या बनेगा 5, इसको जोड़ दो, क्या बनेगा 10, इसको जोड़ दो, क्या बनेगा 10, इसको जोड़ दो, क्या बनेगा 5, फिर 1 1, ठीक। अगर एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 तो ये कोफिशिएंट है 1, पावर 1 तो कोफिशिएंट है 1 1 1 1, पावर 2 है तो कोफिशिएंट है 1 2 1, अगर पावर 3 है तो कोफिशिएंट है 1 3 3 1, अगर कोफिशिएंट 4 है तो ये बने a की पावर 4, b की पावर 0, a की पावर 3, b की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 3, a की पावर 0, b की पावर 4, सब में प्लस प्लस है मान लेते हैं। अब दिक्कत क्या है हमें, कोफिशिएंट, पहले का कोफिशिएंट 1, अगले का 4 पे चले 4, अगले का 6, फिर 4, फिर 1। अगर इसका पावर 5 करेंगे तो ये लिखा हुआ है, पावर 5 में ये वाला है, पहला कोफिशिएंट 1, सेकंड 5, थर्ड 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ये आपका एक्सपेंशन है। ऐसे 6 का एक्सपेंशन करना है तो क्या करोगे, इसका सम 6, इसका सम 15, इसका सम 20, इसका सम 15, इसका सम 6, फिर यहाँ 1 यहाँ, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल। इससे क्या है कि अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसको हम बोल रहे हैं, इसका नहीं आता तो पास्कल ट्रायंगल से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन आराम से कर सकते हो। क्योंकि क्या करना है, पहली वाली टर्म को मैक्सिमम, अगले वाली टर्म को मिनिमम, फिर पहले वाली टर्म को एक कम करना है, दूसरे को एक बढ़ाना है, ऐसे करते जा, लिखते जाओ। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट हम पास्कल ट्रायंगल से निकाल लेंगे, हैं। हाँ, इसीलिए 5 मिनट और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। वेरी गुड क्वेश्चन। उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। हाँ वही वही बता रहा हूं, तुम चिंता ना करो। ठीक है, तो बाइनोमियल THEOREM, ये जनरल फॉर्मूला है किसका, मान लो a प्लस बी होल की पावर n बोलते हैं,
n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है NCR, बस एक बार इसको छोड़ दो, a की पावर n-0 मैक्सिमम पावर होती है, क्योंकि अगर 5 है तो पावर 5 आएगा, और b की पावर 0, जैसे ऊपर हमने किया था, मान लो 5 होता तो a की पावर 5 आता, b की पावर 0, जो कि अपना यहाँ पर भी आ रहा है ना। अगले में हो जाएगा NC1, अभी छोड़ दो NC1 क्या है, ये क्या बनेगा, a की पावर n-1 b की पावर 1, जो अपन ने ऊपर किया वही काम है, यहाँ n जनरल वर्ड है तो n-1 n-2, यहाँ पे 1 2 3। फिर अगला टर्म क्या बनेगा, NC2 a टू द पावर ऑफ n-2 b टू द पावर ऑफ 2। ऐसे करते करते एक जनरल टर्म बनेगी NCR a टू द पावर ऑफ n-r a टू द पावर ऑफ r, हाँ b टू द पावर ऑफ r। फिर ऐसे करते करते NCN a टू द पावर ऑफ n-n यानी 0 हो जाएगा, और b टू द पावर ऑफ n, ये लास्ट टर्म हो जाएगी। अरे कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? होल्ड कर, शांति रखो, शांत, 2 मिनट और दो। अब मान लेते हैं हम a प्लस बी होल की पावर 5 करते हैं, तो ये बनेगा 5c 0 a टू द पावर ऑफ 5 माइनस 0 b टू द पावर ऑफ 0। फिर बनेगा 5c1 a टू द पावर ऑफ 4 b टू द पावर ऑफ 1। फिर बनेगा 5c2 a टू द पावर ऑफ 3 b टू द पावर ऑफ 2। फिर बनेगा 5c3 a टू द पावर ऑफ 2 b टू द पावर ऑफ 3। फिर बनेगा 5c4 a टू द पावर ऑफ 1 b टू द पावर ऑफ 4। फिर बनेगा 5c5 a टू द पावर ऑफ 0 b टू द पावर ऑफ 5, जो कि ऊपर आप एक्सपेंशन देख सकते हो। अब अगर करस्पॉन्ड करोगे तो जो 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे 1 जो करस्पॉन्ड कर रहा है वो किसको कर रहा है, 5c0 को। यहाँ जो 5 करस्पॉन्ड कर रहा है वो किसको कर रहा है, 5c1 को। यहाँ जो 10 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको कर रहा है, 5c2 को। यहाँ का जो 10 करस्पॉन्ड कर रहा है वो 5c3 को, और यहाँ जो 5 करस्पॉन्ड कर रहा है वो 5c4 को, और यहाँ जो 1 करस्पॉन्ड कर रहा है वो 5c5 को। बाकी तो सेम है ना। अगर आप इसकी बात करोगे, ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज सेम है, ठीक है, और ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज सेम है, ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, ठीक। यहां तक बात समझ में आती। अब हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए 5c1 5c2 5c3 ये कहां से आ गया, ये किस चिड़िया का नाम है, और ये वैल्यू कैसे आई, यही बात है, यही प्रॉब्लम है। बाकी तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब जनरली अगर मैं बोलता हूं NCR, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। अब ये क्या होता है फैक्टोरियल, तो अभी अभी समझाया था मैंने। तो मान लेते हैं मैंने कहा 5c0, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू में 0 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। अब आपको पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो 5c0 की वैल्यू आ गई 1। अगर मुझे 5c1 निकालना है तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में 1 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा 5। 5c2 है तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कटेगा 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है तो 2 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। तो 5c2 की वैल्यू 10 होगी। ऐसे ही हम 5c3 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम आंसर आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कटेगा तो ये 2 में जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। फिर हम करेंगे 5c4 यानी कि 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट कैन बी टेकन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5।
और हम निकालेंगे 5c5, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक कटेगा, आंसर आ जाएगा 1। ये एक्सपेंशन है जो यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज्ड एक्सपेंशन होती है एनसीआर की। अब मान लो 12-13 आ गया तो ये एक फॉर्मूला लिख के आप बना सकते हो। ठीक, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्चुअली तो ये लास्ट 2 डिजिट निकालने में भी यूज हो सकता है, बट ठीक है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? पक्का? और क्या बचा इसमें? चलो, जो बचा है वो आज नहीं हो पाएगा जितना टाइम है हमारे पास। इसमें अभी 10 की पावर n + 1 - 1। अच्छा, तो क्यों, अगली क्लास कौन सी है आपकी? अच्छा, ओके, ऑनलाइन। एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम्स, एनीबॉडी? नो सर। सिमरनजीत सिंह, यश, मुस्कान, कोई समस्या किसी की, कुछ भी? नो फिलहाल सर। तो नहीं है सर। समझ में आई सर ये क्लास? जो आपने ऊपर बताया था, ये इसको पास्कल एक्सपेंशन बोलते हैं? नहीं नहीं, ये तो बाइनोमियल थ्योरम है। पास्कल नहीं, एक्सपेंशन इसके या ऊपर ऊपर। वाला ट्रायंगल है, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ये वाला, ये है। बिना बाइनोमियल लगाए अगर हमें कोफिशिएंट्स निकालना है तो हम उसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ओके ठीक है? सर। सर हो गया सर आज का? हाँ, मतलब मैथ्स का क्लास हो गई है। 6 मिनट बचे हैं। सर वो ठीक है? एक तो ये तो आपने बताया कि कॉम्बिनेशन निकालने का, वो अब एक n मिनट। फैक्टोरियल। क्या कह रहे हो? सर ये कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला था ना, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इनटू r हाँ, ये फैक्टोरियल। हाँ, ये जो मैंने सिखाया, ये NC0 कैसे निकालना है, NC1 कैसे निकालना हाँ है, जी, ये है। एक हाँ इसमें सर एक परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला होता था। हाँ, वो NPR इंटू वो R, ये R फैक्टोरियल हटा दो, उसको NPR बोलते हैं। हाँ, बस वो परम्यूटेशन पूछ रहा सर मैं। ठीक है हाँ, सर। हाँ, वो PNC में भी आएगा, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है, दैट शुड बी ऑल देन। हाँ जी ओके सर, सर। थैंक यू। ओके, ओके, बाय, टेक केयर। तो मैंने कब किया?